Hello, everybody. A very warm welcome to all of you. Well, NEET PG counseling is the talk of the town. So आज के हमारे जो guest हैं, he is from GMC Chandigarh. So please help me in welcoming Dr. Sahil, who did his MD Medicine residency program from GMCH. Hello everyone, myself Dr. Sahil Man, and I have done my MBBS from GMC Patiala and my MD Internal Medicine this year only from GMC 32 Chandigarh. ओके सो साहिल भाई अभी देखो जैसे आपको पता है कि काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें चल रही हैं राइट हाँ सो बिफोर डाइविंग इनटू द कन्वर्सेशन रेजिडेंसी की अभी तक की जर्नी कैसी रही आपकी? भाई बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं देखो हर एक रेजिडेंसी में। फर्स्ट ईयर में तो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा मतलब नेगेटिव साइड ही हम सोचते हैं ज्यादा कि मतलब कि निकल जाए जल्दी जल्दी निकल जाए। बट बाय द टाइम यू गेट यूज टू इट एंड बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं बट निकल जाती है। मतलब अगर आपके पास अच्छे सीनियर्स हो अच्छे जूनियर्स हो, है ना, एंड कंसल्टेंट अगर अच्छे हो डिपार्टमेंट अच्छे हो तो इट गेट यू गेट इट अलोंग विद इट। ओके सो डॉक्टर साहिल आपके टाइम पे क्या कट ऑफ रही थी जीएमसी चंडीगढ़ की मेडिसिन सीट की? भाई जनरल कैटेगरी की 2022 में मैंने दिया था एग्जाम मई में। तो तब देयर वाज 550 तक थी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की। ओके आई वाज 138 रैंक इन टाइम। ओके सो डॉक्टर साहिल देखो कॉन्वर्सेशन को डिग इन करने से पहले देखो एक बेसिक क्राइटेरिया सबका रहता है कि व्हाट आर द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ जीएमसी चंडीगढ़ की मेडिसिन डिपार्टमेंट में क्या है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो कि लेट्स से अगर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है किसी भी कॉलेज के लिए तो व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच ही और शी शुड कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग एनी ऑफ द कॉलेज फॉर रेजिडेंसी? गुड क्वेश्चन भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट यू शुड बी क्लियर अबाउट योर ब्रांच कि which branch you are interested in. If you are a medicine person, you like interesting cases, or you want patient interaction, then you choose medicine. If you're an intervention loving person, then obviously surgery ortho. And if you want to make a good money and also, if you don't want that much clinical exposure, then you choose the radiology or other non-clinical branches. Okay, and I will say कि by branch is most important over any college preference. I would say over any college the branch, because branch will be there along your whole life, है ना? College name will be only for those 3 years. So first is branch. Second, भाई I would say कि workload, toxicity, environment कैसा है, मतलब that one should go to the college before joining the PG and ask the PGGRs there कि how it is, मतलब ठीक है. And third I would say bond. Bond is very important, why? Because you don't want to waste your extra years after doing your MD or MS program in the colleges, like, you know, you don't want to waste your time. And fourth is stipend. Uh, and, and fifth, I would say, matlab, which was important in my was ki I am very homesick kind of person. So I always prefer a college near my hometown. So I belong to Panchkula, to the Tri-City, so that's why I chose Chandigarh over any Delhi college, despite having a good rank. ओके सो लेट्स ब्रेक इट डाउन जो जो आपने फैक्टर्स बताए वर्कलोड की अगर बात करें तो हाउ इज द वर्कलोड ऑफ जीएमसी चंडीगढ़? In the, I can tell about medicine department, workload की तो कमी नहीं है बिल्कुल भी. So I mean there are almost 250 to 300 beds है total under medicine, uh, and majority of people from अपना हिमाचल प्रदेश और यहाँ उत्तराखंड and whole Punjab. GMC 32 is a the referral center for them. So workload is good here. I mean, you will never complain about workload. Actually, after coming that here, you will say कि workload तो सर यहाँ बहुत ज्यादा है, इतना काम नहीं होगा. तो टाइमिंग्स वगैरह क्या रहते थे वैसे आपकी ड्यूटीज के? टाइमिंग्स यहाँ पर आई आई विल से कि एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, दिल्ली कॉलेजेस जहाँ पे मैंने पूछा भी था कि देयर PGDR in the first year has to work for 36 hours straight, but here it is only a 12-hour shift. ठीक है, और because here there is no unit system. ठीक है, that is the मतलब I would say advantage here, because
You have to do a 12-hour job and then you go home and then come after 12 hours. So that's why I would say कि it is relatively chill as compared to any other colleges, or if we compare. ओके, सो इज इट feasible enough to manage it with the studies? ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आती? यस यस भाई, बिकॉज देखो फर्स्ट ईयर में यू डोंट हैव टू स्टडी है ना. यू फर्स्ट ईयर में तो यू हैव टू लर्न. यू हैव टू लर्न द बेसिक प्रोसीजर, यू हैव टू लर्न द व्हाट सीनियर इज टीचिंग यू, राइट. सो फर्स्ट ईयर इज लाइक मतलब यू डोंट नीड टू स्टडी मच. only the emergency book you study, matlab if you emergency management only. In the हम्म, second year, third year, you get the time to study, because in that those 12 hours are also, you can matlab relatively chill on those hours also. Matlab your duty get reduced as your seniority get increased. ओके, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर पैरामीटर, टॉक्सिसिटी. पहले टॉक्सिक डिफाइन करो क्या होती है टॉक्सिसिटी. देखो ये अब मतलब हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है इसमें. मतलब कुछ को लगता है कि मतलब ज्यादा काम करा दिया तो भाई ये टॉक्सिसिटी होगी. कुछ होता है कि मतलब बिलो द बेल्ट जाना या अब्यूज करना, मतलब वो सब भी होता है मतलब कुछ कॉलेजेस में. बट वैसा वाला टॉक्सिसिटी नहीं है. ऑब्वियसली वर्कलोड विल बी हेयर, तो वर्क अगर काम करने वाला बंदा है तो उसे नहीं लगेगा यार टॉक्सिसिटी यहाँ पर इजिली. बिकॉज ऐसा कोई सीनियर मतलब ऐसे कोई मतलब वो नहीं है, मतलब कि कोई भी मतलब अब्यूज करे या बिलो द बेल्ट जाए आपके. अब तो इट्स गुड ओनली. एंड रिलेशनशिप भी हमारे भी हमारे सीनियर के साथ में और जूनियर के साथ में बहुत बढ़िया है भाई. मतलब ऐसे कोई वो नहीं है. तो टॉक्सिसिटी तो आई वुड नॉट से. एंड इवन द कंसल्टेंट्स के लेवल पे भी टॉक्सिसिटी होती है. मतलब कई कई जगह कि कंसल्टेंट्स बहुत तंग करते हैं, फैकल्टीज तंग करते हैं. बट भाई वो भी बाय गॉड ग्रेस इन 32 तो आपको नहीं, मतलब दे आर वेरी सपोर्टिव ऑलवेज. ओके, सो इन टर्म्स जो सपोर्ट की बात है कि लेट्स से टॉक्सिसिटी लेवल के, तो क्या रहता है वहां पे कि वर्किंग आवर्स मतलब शिफ्ट बढ़ा दी जाएगी या लाइक व्हाट काइंड ऑफ इट इज? नहीं ऐसा नहीं है भाई. मतलब इन फर्स्ट ईयर मैक्सिमम आपकी ड्यूटी 14 आवर्स हो सकती है. ओके. बिकॉज वैसे है तो 12 आवर्स ही शिफ्ट, लेकिन 14 आवर्स आपको लग सकते हैं आपका काम खत्म करने में, इमरजेंसी में काम खत्म करने में उतना 14 आवर्स. मतलब उससे ज्यादा तो कभी भी नहीं होगा. मतलब अगर बस वही होता है, मतलब अगर किसी को आपके साथ वाले को छुट्टी लेनी है मतलब तो उसको रिप्लेस करना है, तब आपको हो सकता है 24 आवर्स करनी पड़े. बट वैसे मतलब 12 आवर्स तो आई से फिक्स है भाई. ऐसे कोई मतलब वर्किंग आवर्स नहीं बढ़ाते हैं. मतलब टॉक्सिसिटी मैं बता रहा हूँ नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है. सच सिर्फ में यू कैन मेडिसिन ट्रस्ट. डिपार्टमेंट में? हाँ सिर्फ मेडिसिन डिपार्टमेंट में भाई. ये आई विल टेक आंसर ओनली फॉर मेडिसिन. आई कैनॉट आंसर ओके, फॉर अदर डिपार्टमेंट. ओके, ओके. एंड कंसिडरिंग जो हमारा थर्ड पैरामीटर आता है रिगार्डिंग पे स्केल, हम्म. क्या रहता है? दैट इज अराउंड 1 लाख अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पे स्कीम, जो ओके. एम्स में पीजीआई में बराबर ही है सब. एंड साहिल भाई, कंसिडरिंग अबाउट एक्सपोजर जैसे है, हम्म. तो पेशेंट लोडर के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी हैं, राइट, हम्म. उसके रिगार्डिंग लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि अगर लेट्स से इफ समवन वांट्स टू परस्यू डीएम फर्दर, हम्म. सो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइक रिसर्च वर्क हो गया, लाइक इज लाइक कि जीएमसी चंडीगढ़ में वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में अगर कोई करना चाहे? रिसर्च वर्क देखो, इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, तो मतलब मेन तो यहाँ पर ना थीसिस के लिए बहुत वो है, स्ट्रिक्टनेस है. ओके. योर थीसिस मतलब इट विल बी वैलिडेटेड वेरी स्ट्रिक्टली है. मतलब आईसी कमेटी होती है यहाँ पर, जिसमें पीजीआई के कंसल्टेंट्स एंड जीएमसी 32 के कंसल्टेंट्स होते हैं. दे रिव्यू योर थीसिस वेरी स्ट्रिक्टली. तो मेन तो उसे रिसर्च उसके रिगार्डिंग ही होती है. और बेसिकली हमें उससे ज्यादा टाइम तो बाकी होता है केस रिपोर्ट वगैरह. तो उसमें मतलब कंसल्टेंट्स वगैरह बहुत हेल्प करते हैं. इवन पब्लिशिंग में केस रिपोर्ट्स हो गया, केस सीरीज हो गया, बहुत पब्लिश करवाते हैं कंसल्टेंट्स. मतलब और वो हमेशा सपोर्ट करते हैं. मतलब कंसल्टेंट्स भी ना मतलब हमेशा बोलते हैं कुछ भी अगर वार्ड में भी इंटरेस्टिंग केस होता है, मतलब वो खुद बोलते हैं कि साहिल बेटा इसको लिख लो. या मतलब कोई भी तो बेटा लिख लो इसको, अच्छा केस है. या फिर हम इस पे केस सीरीज भी कर सकते हैं. तो रिसर्च सपोर्टिव तो है काफी. और तो एकेडमिक. फंडिंग तो हाँ, फंडिंग वगैरह का भी इशू आता है वैसे एज सच? फंडिंग का भाई देखो आता है इशू. फंडिंग का इशू तो आता है. कई बार यू हैव टू पे फ्रॉम इवन, कई बार थीसिस के लिए इवन यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट समटाइम. ओके. एक्चुअली ये चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली ना आई टुक अ सेशन विद वन ऑफ द फैकल्टीज, मैं नाम नहीं लूंगा. सो वी वर जस्ट कंपेयरिंग कि एक टायर 1 टायर 2 कॉलेजेस के विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, चाहे पीजीआई है या एम्स है, तो वहां पे तो देखो फंडिंग का ऐसा कोई इशू नहीं है. दे आर लाइक कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है तो ऐसा जितना कोई दिक्कत आती नहीं है.
एज कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस जो स्टेट के कॉलेजेस हैं? भाई वो तो अब आई हैव टू बी ऑनेस्ट है ना, बिकॉज देयर आर इश्यूज ना समटाइम्स किट के लिए भी मतलब यू हैव टू मतलब पे। ओके ओके। सो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन की बात करूँ, क्योंकि अब देखो लाइक जैसे जिन भी स्टूडेंट्स का, क्योंकि काउंसलिंग में ऐसा होता है कि किसी को जीएमसी चंडीगढ़ मिल रहा है, राइट, एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, लेट्स से वीएमएमसी है, राइट, या जीएमसी पटियाला हो गया या अदर कॉलेजेस, आपके हिसाब से, क्योंकि आई थिंक आपने भी लाइक जो आपके पीयर्स वगैरह रहे होंगे, आपने भी थोड़ी रिसर्च तो करी होगी, सो हाँ भाई आपकी नॉलेज में व्हाट कुड बी द बेस्ट ऑप्शन अगर ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं स्टूडेंट्स को? देखो मतलब ना ये सब मेरे हिसाब से वो जो मैंने फैक्टर्स होता है उन पर डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर देख रहा है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। हम्म ठीक है, मतलब अब जैसे मेरा अच्छा रैंक था और मुझे दिल्ली के भी मिल रहे थे वो सारे कॉलेजेस, तो बट फिर भी मैंने मतलब नहीं प्रेफर किया बिकॉज मुझे घर के पास रहना था। बिकॉज 3 साल लंबा टाइम होता है और मतलब सबके अपने अपने पर्सनल रीजन होता है इसमें, है ना। हम्म ऑब्वियसली बीएमएमसी इज अ बेटर कॉलेज अगर, लेकिन आप वो बोलोगे कि मतलब अब वो डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, है ना, कि आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स चाहिए या मतलब थोड़ा रिलेटिवली चिल और मतलब ठीक जगह घर के पास चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है इसमें। तो वो हर एक की अलग अलग प्रेफरेंस होती है भाई वो तो। और स्पेशली मुझे तो बॉन्ड फ्री ही चाहिए था, तो मतलब जीएमसी जस्ट बॉन्ड फ्री, तो दैट्स व्हाई मतलब क्योंकि दिल्ली में भी बॉन्ड अब आ गया है और हम्म। पटियाला में भी आई थिंक 1 साल का बॉन्ड है। ओके। एंड साहिल भाई एक बात बताओ, मतलब आई एम आस्किंग फ्रॉम अ वेरी लेमन पर्सपेक्टिव, राइट, क्या हम्म, क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी कॉलेज को, जैसे आपने बताया वीएमएमसी है, राइट, हम्म, वीएमएमसी इज मच बेटर देन जीएमसी पटियाला, राइट, हम्म, अब देखो वहां पे बॉन्ड है, राइट, हम्म। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी कॉलेज को एक बेटर बनाते हैं एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंसी? देखो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फर्स्ट तो मतलब मेरे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो बॉन्ड था। ठीक है, एंड सेकंड हो गया टॉक्सिसिटी। ये डिपार्टमेंट में टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। भले ही मतलब आई वुड से कि बीएमएमसी इज मच बेटर, तो बट मैं ये गारंटी ले सकता कि वहाँ टॉक्सिसिटी नहीं है। ठीक है, वहाँ हो सकता है टॉक्सिसिटी ज्यादा हो, बिकॉज जितना हमने अपने सीनियर्स को सुना है तो जैसे कि मतलब वहाँ पे थोड़ा रिलेटिवली टॉक्सिक है मतलब इन्वायरमेंट, और 36,000 आवर्स की शिफ्ट होती है आपकी मतलब वहाँ पे। ओके। तो वो भी तो मतलब वो आपको फैक्टर्स लेने पड़ेंगे ना उसमें। एंड लेट्स से अगर मैं कंपैरिजन रखूं जीएमसी चंडीगढ़ और पीजीआई का? हम्म। तो भाई मतलब क्या कंपैरिजन है मतलब पीजीआई वुड से कि भाई रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब इट्स मेनली रिसर्च। ट्रीटमेंट तो आई वुड से भाई दोनों दोनों जगह सेम ही हो रहा है। सेप्टिक शॉक यहाँ पे भी आइनोट्रॉप से मैनेज हो रहा है, वहाँ पे भी आइनोट्रॉप से मैनेज हो रहा है। ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा। मेनली है कि वहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन पैनल बड़ा हो जाता है, तो मतलब आप थोड़ा और मतलब पेशेंट को खोद के निकाल सकते हो डायग्नोसिस को रिसर्च के लिए। तो इवन जो ट्रिकी केसेस होते हैं हमारे पास जीएमसीएच में 32 में, तो हमारे कंसल्टेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेते हैं वहाँ के कंसल्टेंट से कि वही मतलब ये केस नहीं समझ में आ रहा है तो, और या फिर इस केस का मैनेजमेंट मतलब वहां से होगा, तो मतलब दे मतलब पास में। ओके। एंड लेट्स से अगर मैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स वगैरह की बात करूं, राइट, हम्म। जैसे आईजीएमसी है, जीएमसी पटियाला है, वहां पे जीएमसीएच में ऐसा एक्सपोजर कैसा है इन सब चीजों से रिलेटेड? जैसे टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट्स इन टर्म्स ऑफ रिसर्च हो गया या बाकी चीजें हैं, चाहे जो मशीन्स हैं वहां पे जो यूज होती हैं? भाई मशीन्स के लिए तो जैसे हमारा इसमें तो अल्ट्रासाउंड है। हम्म। और तो मतलब बाकी मतलब एआई वगैरह तो अभी मतलब आई डोंट थिंक मेडिसिन में तो उतना नहीं आया अभी एआई। ओके। हाँ हाँ हाँ। रेडियोलॉजी को आई कैनॉट गारंटी मतलब कि एआई कैसे हेल्प कर रहा है रेडियोलॉजी वालों को, आई कैनॉट से अबाउट दैट। कि बाकी तो मतलब टेक्नोलॉजी तो मतलब अभी इतना नहीं है मतलब एडवांसमेंट ओके। टेक्नोलॉजी में। सो लेट्स से अगर अब किसी स्टूडेंट को डीएम परस्यू करनी हो, राइट, जैसे आप कर हम्म, रहे हो, राइट, हम्म, तो उसके लिए जीएमसीएच से अगर वो अपनी रेजिडेंसी कर रहा है तो उसके लिए क्या फ्यूचर हम्म। प्रोस्पेक्ट्स आएंगे वहां पे? भाई फ्यूचर में मतलब देखो यहाँ पर ये है कि आपको टाइम मिल जाता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ना पढ़ाई का, तो अच्छा खासा प्रिपरेशन कर सकते हो आप। और एज फॉर डीएम और मतलब और इवन हमारे सीनियर्स भी मतलब काफी अच्छी अच्छी जगह मतलब अभी सेट हो रखे हैं मतलब, है ना। तो वो तो मतलब डीएम में तो काफी जाते हैं हमारे यहाँ से मतलब इन फ्रॉम मेडिसिन डिपार्टमेंट आई वुड ओके। से। एंड हाउ हाउ मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वाइज कैसा रहता है जीएमसीएच के इन इन द डीएम? डीएम
मतलब आर सीनियर्स आर देयर, मतलब एम्स नागपुर में है, एम्स दिल्ली में है, उदयपुर में है, सीएमसी वेल्लोर में है, गैस्ट्रो परस्यू कर रहे हैं हमारे सीनियर। तो मतलब है, रहता है, मतलब अच्छा रहता है। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी काफी सीनियर, 50% ऑफ द सीनियर्स निकाल लेते हैं, 12 में से 6 सीनियर्स निकाल लेते हैं सीट्स। बाकी कुछ का ऑब्वियसली सबका मन नहीं होता है डीएम करने का, कुछ वांट टू सेटल इन देयर पेरिफेरी विद ओके। एमडी। एंड साहिल भाई, आपने कॉन्वर्सेशन जब स्टार्ट हुई थी आपने बोला था देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, राइट? तो हम्म। लेट्स से जीएमसीएच चंडीगढ़ की मेडिसिन डिपार्टमेंट में कॉन्स क्या है, या व्हाट वर द लाइक थिंग्स व्हिच यू फेस्ड ड्यूरिंग योर रेजिडेंसी, नेगेटिव कौन थिंग? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से सुपर स्पेशलिटी एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब वो नहीं है इतना। पल्मनरी मेडिसिन और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ही है। अदर देन दैट मतलब कोई सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट नहीं है। तो एक तरीके से आप इसको प्रो भी ले सकते हो, बिकॉज मेडिसिन वाले की सभी केस देखना है। बट ऑब्वियसली जो सुपर स्पेशलिटी एक्सपोजर होता है, मतलब एडवांसमेंट जैसे आप पूछ रहे थे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जैसे इवन स्ट्रोक के लिए मतलब एंडोवास्कुलर थेरेपी, उसके लिए भी हमें रेफर करना पड़ता है पीजीआई ना। तो मतलब वो एडवांसमेंट नहीं है अभी। एक तो सबसे बड़ा कॉम तो आई वुड से यही है। दूसरा, ठीक है। काम ना करने वाले को ऑब्वियसली वर्कलोड ज्यादा है, तो वो भी लग सकता है कौन ही है। बाकी तो आई वुड से मतलब बढ़िया है भाई। नहीं, आई गेस देखो फर्स्ट ईयर में तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि हुआ है, लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब बंदा अपनी रेजिडेंसी की प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, तो वहां पे तो हम्म। आई थिंक अगर इतने हेक्टिक शेड्यूल रहेंगे तो वहां पे देयर वुड बी, मतलब ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वही मैं बोल रहा हूँ, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इतना हेक्टिक नहीं है ना। फर्स्ट ईयर में ही हेक्टिक है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इट इज रिलेटिवली चिल। ओके। थर्ड ईयर में तो यू हैव टू राउंड प्रेजेंट करना है, देन उसके बाद आप जा सकते हो। मतलब ओपीडी में भी आई थिंक 6 आवर्स ड्यूटी है, उसके बाद आप निकल जा सकते हो। एंड सेकंड ईयर में मेनली वार्ड वार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इवन सेकंड ईयर में तो आपकी डीआरपी पोस्टिंग भी लगती है 3 मंथ्स के लिए। तो वो तो बहुत ही ज्यादा रिलेटिवली चिली होता है, उसमें तो मतलब जाना ना जाना ऐसे ही होता है। तो वो ठीक वहां पे भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ाई का बहुत टाइम होता है, प्रिपेयर कर सकते हैं इजिली। है। और इसके अलावा एनी अदर कॉन्स? और तो भाई नहीं है कोई, मतलब मुझे तो नहीं लगता बाकी कौन सा और कोई। ओके। एकेडमिक भी अच्छा है। एंड कंसिडरिंग अबाउट हॉस्टल लाइफ कैसी है वहाँ की? मेरा तो भाई एक्चुअली घर ही था पंचकुला में, तो आई हैव, मैं हॉस्टल रहा नहीं उतना, तो मुझे इसके बारे ओके। में इतना नहीं होगा। बट वही थोड़ा मैथ्स का कंप्लेन आता रहता है फ्रेंड्स से, तो बट आई थिंक अब वो भी इम्प्रूव कर लिया काफी। Okay, fair enough. So, any word of advice for all the NEET PG students who are, applying for the counseling and stuff? यही है भाई कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात तो क्लियर हो कि ब्रांच कौन सा करना है। कॉलेज के बारे में मतलब कॉलेज प्रेफरेंस के पीछे मत भागना। ठीक है, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ऑब्वियसली मतलब ये जो होम वाला फैक्टर मैं बता रहा हूँ ना, कुछ बंदों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, कि मतलब कि घर के पास ही मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे मतलब कईयों की होता है यार कि फैमिली में मतलब मॉम डैड की हेल्थ नहीं अच्छी रहती, तो मतलब उन वो घर के पास ही प्रेफर करते हैं, मतलब जैसे। ठीक है, सिमिलर मेरे मेरे उसमें भी था। ठीक है, तीसरा आई वुड से कि 32 अच्छा है, मतलब आपको ऑब्वियसली सुपर स्पेशलिटी एक्सपोजर नहीं मिलेगा बाकी, लेकिन एकेडमिक एक्सपोजर काफी अच्छा है और वर्कलोड काफी अच्छा है। ठीक है, तो यू विल लव हेयर, एंड ऑल्सो सीनियर जूनियर मतलब बॉन्डिंग टॉक्सिसिटी नहीं है, तो मतलब परफेक्ट है। और 12 आवर्स ड्यूटी भाई, आई डोंट थिंक मतलब कहीं भी अभी मतलब इतना मिलता है। नहीं तो सभी जगह आपको बिठा के रखते हैं पूरा, Mm-hmm. मोस्टली। ओके। एंड डॉक्टर साहिल, आई फॉरगॉट टू आस्क दिस थिंग कि लेट्स से हम स्टाइपेंड की बात कर रहे थे, तो जो 1 लाख बताया, वाज इट यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल 3 years और लाइक व्हाट? फर्स्ट ईयर में 96 है, सेकेंड ईयर में 1 लाख 3 है, और थर्ड ईयर में आई थिंक 1 लाख 10 है। एंड इट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर? हाँ हाँ, इट रिमेन कांस्टेंट। ओके। I'm ओके। not exactly sure about these numbers, but it's around 1 lakh only, मतलब जीएसटी कट कटा के इतना ही आता है 1 लाख के अराउंड। ओके, ठीक है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिल फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। Yeah. या, थैंक यू सो मच।